और अब हम आपको सीधे ले चलते हैं आर्यभट्ट सभागार, जहां पर आईसीएफआई यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहां पर राज्यपाल रमेश बैस भी पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम में हम आपको सीधे ले चलते हैं कि फिलहाल क्या कुछ हो रहा है वहां पर। The future of the students, be it in business or what you can give back to the society. See, all the dear students, all of you are here at the cusp of your career. You will just begin your career. You have graduated from here, from this university. I think from my experience, what I could gather when I had started after graduating law, I started practicing in the year 1991. The three things which stood out, which helped me in my career or in my life, was patience, perseverance and passion. I think these are the three most important things in a person's life, be it in a profession or a business or a service. You people will branch out into various fields. There are 30 LLB students who have been conferred their degrees today. See, some might become a judicial officer. Some would go for practicing, maybe in the civil court, high court or in the Supreme Court, become big shot lawyers. Or some may go to the solicitor firms and others. Wherever you go, see, everything cannot be handed over to you in a platter. You have to earn it. Today you have earned your degree by studying hard with the help of your teachers and students and whoever associated with you. Tomorrow you will be in the world. Obviously all of you are ambitious. But to fulfill your dreams, you have to have certain things, just as I said. You must be having passion, you must be having perseverance, and you must be patient. Because in your life you will find that there are so many potholes, so many obstacles, so many troubles. I have faced it when I was in my practicing early years of my practice. But with perseverance and with honesty, I could remove those obstacles, I could overcome those obstacles. If you are focused, towards your profession and towards what you want to do, I think there is no reason why you should not succeed. See, you know you have taken an oath. I think whatever I have said is in that oath itself. If you are true to your oath, I think there is no reason as to why you would not be successful. Thank you so much. Wish you a glorious career ahead, and thank you. Thank you, sir. Thank you for this motivation, and I think this will energize all the students who have taken degree as well as those who are aspiring for their better future. Thank you so much. Now it is high time, as you all have come to know today, the Honorable Governor of Jharkhand is with us. His life has always been a motivation to the people who know him. Those who have worked with him, those who have shared in life of his experience with him. So this is a time I can only say about him that, sir, you are a precious soul with divine essence. You are a precious soul with divine essence, a luminous spiritual being, having a human experience filled with lessons and opportunities for growth and acceptance. Your presence teaches us a lot. Your presence motivates everyone who has been with you and who is with you. Your presence in the state has given a new idea, a new thought, a new presence to be in the society the way we should. Your ideas and thoughts have motivated the people to live a better life and to raise the bar of the social living. So now we are waiting desperately for the guidelines, for the motivation and the precious words from our Honorable Governor of Jharkhand, Shri Ramesh Basji. Sir, please. विश्वविद्यालय झारखंड के दीक्षांत समारोह में उपस्थित झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय झारखंड के चांसलर डॉक्टर टी.के. राव जी, कुलपति प्रोफेसर O.R.S. राव जी, कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार जी,
होने वाले विद्यार्थी ये बोलते हैं भारत बेटी और सज्जनों, प्रेस व मीडिया के साथियों, जोहार, नमस्कार। विश्वविद्यालय झारखंड के दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर अपार प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माता पिता और शिक्षकों का आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती हुई है। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महान देशभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्वता, नम्रता एवं सादगी की प्रतिमूर्ति थे। मैं चाहता हूं कि आप विद्यार्थी देश रत्न के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और विषम परिस्थिति में सफलता हासिल करें। मुझे बताया गया है कि इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड इक्फाई समूह का हिस्सा है, जिसके पूरे भारत में 11 विश्वविद्यालय हैं। 2008 के झारखंड अधिनियम के अनुसार स्थापित इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड में स्थापित पहला निजी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल कृषि, साइबर सुरक्षा, व्यवसाय के डिजिटल परिवर्तन आदि की दिशा में भी पहल की गई है। यह खुशी की बात है कि स्थानीय छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को शुल्क में छूट दी जाती है, जिसकी वजह से 2021-22 के दौरान लगभग 77% विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान किसी विद्यार्थी के पिता की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसको अध्ययन शुल्क में पूरी छूट दी जाती है। यह एक सराहनीय पहल है। विश्वविद्यालय को इस पहल के लिए मैं बधाई देता हूँ। गर्व की बात है कि इस विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा सुश्री संगीता कच्छप को सक्सेस विश्वविद्यालय यूके में अध्ययन के लिए झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए मरान गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति परियोजना के सम्मानित किया गया है। मैं इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पिछले वर्ष भी आ चुका हूँ। मैंने विश्वविद्यालय को आधारभूत संरचना विकसित करने एवं प्लेसमेंट सेल को और प्रभावी बनाने के लिए कहा गया है। आशा है कि विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में प्रयास किया गया होगा या किया जा रहा होगा। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों का संचालन यूजीसी एवं सरकार के मापदंड के अनुरूप हो। यहाँ के विश्वविद्यालयों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुलभ हो तथा कक्षाएं नियमित हो तथा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आप लोग प्रतिबद्ध होकर कार्य करते हुए अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श बने। आप लोगों को शोध का स्तर बेहतर करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अंगीकृत करने की दिशा में गहनतापूर्वक विचार करें। मैं आज सभी उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि केवल उपाधि लेना ही आपके जीवन का असली मकसद नहीं होना चाहिए। सही दृष्टि में सही राह की चयन करना और समय की कीमत को समझना भी जरूरी है।
आपको अपने भावी जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी दक्षता एवं परिश्रम से अपनी पहचान स्थापित करने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाना है। आप अपने संस्थान और देश के विश्वास पर खरा उतरे, कठिन परिश्रम करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, सकारात्मक सोच रखें और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्म करते रहें। आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करें उसमें उत्कृष्टता अर्जित करने का प्रयास करें, जिससे सिर्फ आपका विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरा राज्य और राष्ट्र को आप पर गर्व हो। आपको आपकी मंजिल मिले, आपके सपने साकार हो, आप अपने जीवन के हर कदम पर कामयाबी हासिल करें। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। अभी हिंदी के बारे में भी काफी कहा गया और मैं राव साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरा वक्तव्य उन्होंने हिंदी में दिया। आप लोग अगर कोई विदेश गए होंगे, कोई कॉन्फ्रेंस में, कोई कार्यक्रम में, घूमने के अलावा अगर कोई कार्यक्रम में गए होंगे तो आप देखेंगे कि विदेश में कोई भी जब जाता है, जब मैं मंत्री था मुझे कई बार विदेश जाने का मौका मिला, कई कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। मीटिंग के पहले अगर हम किसी दूसरे देश के व्यक्तियों से बात करते हैं तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम चालू होता है तो हर कोई अपने देश की मातृभाषा में बात करता है। मैं लंबे समय तक मेरे राजभाषा समिति में मैंने काम किया, पार्लियामेंट में। हमारा संविधान भी कहता है कि जब संविधान बना तो वहां के जो विद्वान बैठे थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने कुछ सोच समझ कर कोई जितने भी संविधान में कानून बनाए, और उस समय कानून में यह कहा गया है कि हमारा देश का राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, माध्यम अंग्रेजी होगा। 10 साल में धीरे धीरे अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी को पूरे देश में स्थापित किया जाएगा। आज देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। कि हम कहां पर खड़े हैं इसकी आंकलन करना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपनी राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए कोई कमेटी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया हो। सिर्फ हमारा देश है जो हिंदी को बचाने के लिए एक समिति, राजभाषा समिति बनाई गई है। और हमें तो लगता है कि कोई अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो हम समझते हैं कि वो बहुत ईमानदार, बहुत बुद्धिमान है। अगर कोई हिंदी बोलता है तो सोचते हैं कि ये गंवार है। ये हमारे अंदर जो भावना है। मैं तो कई बार कई बातें करते रहता हूं, जैसा हम डोमेस्टिक फ्लाइट में हम सफर करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। मैंने जब कमेटी में था तो मैंने इस बात पर आपत्ति किया था कि डोमेस्टिक फ्लाइट में सब भारतवासी बैठे रहते हैं, वहां पर अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है। आप इंटरनेशनल फ्लाइट में आप अंग्रेजी में अनाउंस करिए। लेकिन आज कोई भी देश में, देश की जो भी भाषा हो, अपने आप में पूर्ण नहीं है। वो कोई न कोई देश का शब्द वो लेकर अपनी भाषा बनाए है। और मैं तो मजाक में कभी कभी कहता हूं कि हमारे देश में न हिंदी है न अंग्रेजी है, यहां पर इंग्लिश शब्द भाषा चल रही है। अगर किसी को हिंदी बोलने की बात करेंगे वो पूर्ण रूप से हिंदी नहीं बोल सकता। किसी को अंग्रेजी में बात करने बोले तो वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी भी बात नहीं कर सकता। हमें अपनी भाषा पर गर्व होनी चाहिए। खाली राजभाषा समिति एक पखवाड़ा सप्ताह मना ले, हर दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में, विश्वविद्यालयों में भी मनाया जाता है कि हिंदी पखवाड़ा,
अगर 7 दिन हम हिंदी में बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दिन हम हिंदी के लिए कोई कार्यक्रम कर दे, वाद विवाद प्रतियोगिता कर दे, उससे कोई देश का भला नहीं होने वाला। हमें अपनी मन की झिझक को दूर करनी होगी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली कौन लाया? लॉर्ड मेकाले। जब 1947 में देश स्वतंत्र हो रहा था तो लॉर्ड मेकाले की मां ने लॉर्ड मेकाले को पत्र लिखी कि बेटा, भारत तो स्वतंत्र हो रहा है, कब लंदन वापस आ रहे हो? तो लॉर्ड मेकाले ने अपने मां को पत्र लिखा कि मां, मैं बहुत जल्द लंदन वापस आ रहा हूं। हालांकि भारत देश स्वतंत्र हो रहा है, मैंने भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली दी है कि देश स्वतंत्र होने के बाद भी वहां के रहने वाले जो भारतीय हैं वो अंग्रेज के गुलाम रहेंगे। क्या देश में इतने बलिदानी हुए देश को स्वतंत्र कराने के लिए, क्या हम अपनी राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए हमें गर्व नहीं होनी चाहिए? हमें शर्म क्यों होती है? शर्म तो उनको होनी चाहिए जिनको हिंदी नहीं आती, कि हम अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बोल पा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग जहां भी जाएंगे, अपने देश को ध्यान में रखते हुए, अपनी मातृभूमि को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रदेश को, अपने समाज को, अपने परिवार को एक ऐसा काम करेंगे कि हम किसी का सिर झुकने नहीं देंगे। हम जो देश में जाएंगे हम वहां पर भारत का झंडा फहराएंगे। इसी भावना के साथ आप लोग आगे अपने भविष्य में काम करेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अद्भुत, अनुकरणीय, अद्वितीय जो संबोधन आपने इस सभागार में दिया है, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक आपकी यह बात, लोगों तक आपका यह संदेश पहुंचेगा और हम अपनी राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा समझकर महान माननीय राज्यपाल झारखंड के श्री रमेश बैस, आज समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति नंदन मुखोपाध्याय, वाइस चांसलर श्री ORS राव जी, रजिस्ट्रार जी, मंच पर उपस्थित अतिथिगण, यहाँ बैठे हुए मुख्य अतिथि, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गेस्ट प्रेस, आप सबको मेरा प्रणाम। जब मैं झारखंड रांची आ रहा था इस दीक्षांत समारोह के लिए, प्लेन में वाइस चांसलर साहब ने बोला, आप 1-2 शब्द हिंदी में बोलने से अच्छा होता है। हमने बोला 1-2 शब्द क्यों, पूरा भाषण हिंदी में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारा राज्य भाषा है। कानून बोलते हैं राज्य भाषा, मगर हम लोग ये हमारा फर्ज समझता हूँ देश के नागरिक है, वो राज्य भाषा को हम अपनाएंगे, बात करेंगे, व्यावहारिक रूप में बात करेंगे, तभी राजभाषा बहुत जगह जा सकता है। और ये हमारा गर्व का कारण होता है जब हम हिंदी में बात करते हैं। मैं दक्षिण प्रांत से हूँ, तो थोड़ा गलती हो जाएगा व्याकरण में और किसी शब्द में। मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों से और आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, इस गलती को आप प्यार से माफ कीजिए। आज का विषय हमने सोचा था क्या करूं। मैं ये सोच रहा हूं कि आप सब जो ग्रेजुएट होके बाहर दुनिया में कदम रख रहे हैं, आप एक आशापूर्वक पॉजिटिव रूप में जाना चाहिए। देखिए, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि हर साल हम लोग 3-4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आते हैं। सरकार नौकरी सबको देना नामुमकिन है, मगर हमारा शिक्षा जो आप यहाँ पर है और आपको हम लोग आपको कोच किया है, आपको सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, आप एक लघु उद्योगपति होना चाहिए और आप 10 आदमी को उद्योग देना चाहिए।
प्रॉब्लम सॉल्व हो। आप किसी कोर्स में हो या लॉ में हो, मैनेजमेंट में हो, 2-3 साल काम कीजिए, ठीक है, मगर आपका अंदर एक प्रेरणा होना चाहिए कि मैं अपने आप से कुछ करूं, मैं अपने आप से कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप से एक व्यवस्था और एक छोटे से लघु उद्योग का कार्यक्रम करके 2-3 आदमी को नौकरी दूं, उसका चैलेंज अलग होता है। मैं आपको एक उदाहरण नहीं, एक इंसिडेंट बताता हूँ। पिछले हफ्ते में वाराणसी में कॉरिडोर देखने के लिए 6 दिन, जब मैं वो कॉरिडोर में महादेव को दर्शन करने के बाद बैठा था, एक औरत एक बार बकेट में 3-4 फ्लास्क रखे हमारे पास आए और हम लोग भी बैठे थे। साहब, आपको मसाला चाय चाहिए क्या? उसके पास इक्विपमेंट कुछ नहीं, एक बकेट, 3 फ्लास्क गर्म पानी का, 3-4 नींबू, एक मसाला के डब्बे और वो लाइम स्क्वीजर और एक डिस्पोजेबल कप्स, पूरी बड़ी, उसको एक चाय को 10 रुपये है। मैं थोड़ा इनक्विजिटिव हो गया, सो अगले दिन से नहीं गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।